में रहने वाले Justice of India and Patron-in-Chief NALSA, Honorable Mr. Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman NALSA, Honorable Mr. Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India and Chairman, Supreme Court Legal Services Committee, Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State, Ministry of Law and Justice, Honorable Judges of the Supreme Court, Honorable Chief Justices, Honorable Judges and distinguished guests. NALSA welcomes you once again to this two-day national conference. I humbly request Honorable Mr. Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman NALSA to kindly deliver the welcome address. Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Justice Bhushan Ramakrishna Gavai, Honorable Chief Justice of India and Patron-in-Chief, National Legal Service Authority, Justice Vikram Nath, Judge Supreme Court of India and Chairman Supreme Court Legal Service Committee, brother and sister judges from the Supreme Court of India, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Union Minister of State for Law and Justice, distinguished Chief Justices and judges from various high courts, officers and members of the National Legal Service Authority, esteemed members of the legal fraternity, ladies and gentlemen. It is my privilege as Executive Chairman of the National Legal Service Authority to extend a very warm welcome to each one of you on the momentous occasion of Legal Services Day. This annual gathering reminds us that the true measure of a justice system is not how swiftly it decides complex cases, but how deeply it touches the lives of ordinary citizens. It celebrates the partnership between those who interpret the law, those who implement it, and those who carry its light to the farthest corners of our country. When our Constitution was framed, the goal was not just to create a legal order, but to nurture an instrument that secures fairness, human dignity, and equal protection for all. Legal aid is where that design meets reality. It converts a constitutional value into pragmatic relief, a means by which the poor, the marginalized, and the invisible victims of the system can assert their rights, obtain remedies, and be heard. As the demand for equal and affordable justice deepened, institutional frameworks evolved to answer that call. The enactment of the Legal Services Authorities Act 1987 was a decisive moment in this journey, as it gave statutory recognition to the constitutional provisions under Articles 14 and 39A of the Constitution, ensuring that no citizen is denied legal assistance due to economic or social constraints. The Act created permanent machinery to provide legal help, to spread legal awareness, and to promote fair and fast resolution outside adversarial warfare. Transforming this vision into a concrete reality, NALSA became the national node connecting a wide network of state and district bodies, the law schools, the volunteers, and legal workers devoted to widening access. The results are tangible. Millions have been spared lengthy litigation through conciliatory forums. Lakhs have found representation without any cost. A lot many victims have received statutory compensation. Thousands have got their disputes resolved through mediation. Each outcome translating law into relief and stability for ordinary lives. These numbers are not mere figures. They are the people whose problems are met with practical help. The legal aid movement has in recent years gone deeper and stretched its reach further. The prison programs now focus on rehabilitation rather than only punishment. Schemes that support families of defense personnel, a nationwide movement to institutionalize mediation, and outreach for communities affected by human-wildlife conflicts. These are some examples of the law adapting to social realities. Looking ahead, we must make legal aid
easier to obtain, that demands both administrative reforms and human practice. Technology does offer real opportunities like remote clinics, online conciliations, and digital complaint portals. But technology alone will not suffice. It must be guided by local knowledge, linguistic accessibility, and human empathy. This mission requires shared ownership. Judges, lawyers, legal educators, law students, paralegal volunteers, community groups, and civic society all have distinct roles and act as the bridge between digital tools and the needs for citizens. On this Legal Services Day, as we gather for the National Conference on strengthening legal aid delivery mechanisms, we reaffirm our commitment to building a justice system that is pragmatic, dignified, and truly people-centric. Strengthening legal aid is not merely about expanding institutional capacity. It is about simplifying the pathway through which a person in distress can access the protection of law. Our endeavor is to design systems that respond with speed, clarity, and compassion to make justice truly affordable, understandable, and reachable to people wherever they are. On behalf of NALSA, I extend my deepest gratitude to Honorable Prime Minister of India and all other dignitaries who have joined us today. May this conference renew our resolve to make justice not only accessible but humane too, and in doing so, we not only uphold the Constitution, we fulfill its noblest promise. Thank you. Jai Bharat. Thank you very much, respected sir, for your kind words. I invite Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State for Law and Justice, for his address. आज नालसा की 3 दशक लंबी यात्रा के पूर्ण होने के अवसर पर स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म विषय पर आयोजित 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन एवं लीगल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रतिबद्ध हम सबके प्रेरणा स्रोत, यशस्वी, तपस्वी व कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, न्यायपालिका में नवाचारों के सूत्रधार भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं नालसा के पैटर्न इन चीफ आदरणीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई डेजिग्नेट एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा आदरणीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी, आदरणीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय एवं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य उपस्थित न्यायमूर्तिगण, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण, लर्नेड सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, विभिन्न लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के प्रतिनिधिगण, मीडिया बंधु, सम्मानित अतिथिगण एवं प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके साथ इस अवसर पर शामिल होना एक अत्यंत गर्व व हर्ष का विषय है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड से संबंधित प्रावधान को नीति निर्देशक तत्वों आर्टिकल 39A के रूप में संविधान में शामिल किया गया। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अपनी 3 दशक की यात्रा में नालसा ने जरूरतमंद नागरिकों को कानूनी सहायता और सेवाएं प्रदान करने के मान लक्ष्य की दिशा में सराहनीय भूमिका निभाई है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के संस्थागत आयामों ने समयानुसार नवाचारों को अपनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को निरंतर प्रगाढ़ किया है तथा सामान्य मानवीय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सिटीजन सेंट्रिक व बॉटम अप अप्रोच के साथ गवर्नेंस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। नालसा की शुरुआत से लेकर न्याय को सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी बनाने की गौरवशाली यात्रा इसी का एक उदाहरण है।
एक सफल लोकतंत्र की पहचान न्याय की गारंटी के साथ साथ न्याय तक समान पहुंच में भी निहित है। यहां उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स व विशेषकर युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि जस्टिस डिलीवरी को केवल एक संप्रभु कार्य नहीं समझकर नागरिक केंद्रित सेवा, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस का भी एक रूप समझना चाहिए। इसी दिशा में विधि एवं न्याय मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है। न्याय की पहुंच को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित करने हेतु टेलीलॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दिशा डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस योजना के तहत किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि 2017 में शुरू किए गए टेलीलॉ के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से भी अधिक बेनिफिशरीज को प्री लिटिगेशन एडवाइस दी जा चुकी है। स्थानीय भाषाओं में लीगल लिटरेसी व लीगल अवेयरनेस को बढ़ावा देने हेतु AI बेस्ड भाषिणी टूल के उपयोग से न्याय सेतु जैसे इनोवेटिव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चलकर तथा न्यायपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न्यायिक व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार हेतु प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015-16 में जहां लीगल एड एक्टिविटीज के लिए नालसा का बजटीय प्रावधान 68 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर करेंट फाइनेंशियल ईयर में 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसमें से 350 करोड़ रुपए की राशि अब तक रिलीज की जा चुकी है। नालसा द्वारा विभिन्न वंचित समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से विभिन्न विशेष योजनाएं बनाकर जैसे एसिड हमलों के पीड़ित, आपदाओं से बचे लोग, जेलों में कानूनी सहायता, क्लिनिकों की स्थापना, मानव तस्करी के शिकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, बच्चे, मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, आदिवासी समुदाय और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के संवेदनशील कार्यों में निभाई गई भूमिका के लिए भी नालसा बधाई की पात्र है। ऐसे अनेक प्रयासों ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं और हमारे सामूहिक संवैधानिक दायित्व की प्राप्ति में योगदान दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई लोक अदालत ने सिद्ध किया है कि टेक्नोलॉजी न्याय को नागरिकों के द्वार तक ला सकती है। डिजिटल आउटरीच के माध्यम से लीगल लिटरेसी का प्रसार और ऑनलाइन लीगल सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ बनाना जस्टिस के भविष्य के पहलुओं को परिभाषित करेगा। भारत का मॉडर्न टेक्नोलॉजी व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मॉडल अब विश्व के लिए एक मानक बन रहा है। यहाँ ये बताना प्रासंगिक है कि ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में भारत के लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म और जुडिशियल एवं लीगल इफेक्टिवनेस को लेकर नवंबर 2023 में फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड स्ट्रेंथन एक्सेस टू जस्टिस इन ग्लोबल साउथ का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों के प्रतिभागियों ने एकजुट होकर इस दिशा में सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया था। आज लीगल सर्विस डे के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ये चिंतन करने का क्षण है कि वर्ष 2047 में जब हम विकसित भारत की यात्रा पूरी कर रहे होंगे, तब लीगल एड इकोसिस्टम का क्या स्वरूप रहेगा। कानूनी सेवाओं को अधिक फ्लेक्सिबल व संवेदनशील बनाने में अभी भी बहुत कार्य किया जाना शेष है। सामाजिक रूप से संवेदनशील वकीलों व लॉ कॉलेजों के साथ प्रो बोनो कल्चर को बढ़ावा देना, पैरालीगल वॉलंटियर्स को जोड़कर न्यायिक साक्षरता का प्रचार करना व टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव में लीगल एड सीकर, लिटिगेंट, विक्टिम्स के दृष्टिकोण से न्याय प्रणाली की जटिलताओं को सरल बनाना भी शामिल है। मैं जुडिशरी, बार काउंसिल व सभी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस के अथक समर्पण की सराहना करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय, नालसा एवं जमीनी स्तर के लीगल एड वर्कर्स का आपसी व प्रभावशाली तालमेल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रत्येक न्यायाधीश, वकील एवं पैरा लीगल वॉलंटियर हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र मिशन जस्टिस फॉर ऑल के कर्मठ सिपाही हैं। मैं नालसा और उससे जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर को उनके सतत व सकारात्मक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि नालसा द्वारा पिछले 30 वर्षों की यात्रा
तथा उससे अर्जित लर्निंग हमें भविष्य में एक अधिक इंक्लूसिव एवं संवेदनशील न्याय प्रणाली की ओर अग्रसर करेगी। मैं इस अवसर पर नालसा का थीम सॉन्ग की भी कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा, जो हमें न्याय तक सभी की पहुंच का सार्थक संदेश देती है। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आसिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। Respected sir, इन उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। Continuing this journey of inspiration and insight, we have the honor of welcoming our esteemed speaker, Honorable Mr. Justice Bhushan Ram Krishna Gavai, Chief Justice of India and Patron-in-Chief NALSA, to address the gathering. Shri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of India, my esteemed colleague Justice Suryakant, Chief Justice of India Designate and Executive Chairman of NALSA, my esteemed colleague Justice Vikram Nath, Chairperson of the Supreme Court Legal Services Committee, my distinguished sister and brothers present in the audience, Shri Arjun Ram Meghwal ji, the Honorable Minister of State for Law and Justice, Chief Justices and Judges of the different High Courts present here, the delegates from the District Judiciary, Shri Tushar Mehta, the Learned Solicitor General, Ms. Pradnya Baghel, the Secretary of Supreme Court Bar Association, Shri Vipin Nair, President, and other office bearers of the SCORA, the Secretaries of Law and Legislation, Government of India, the Secretary General, the registrars and officers of the Supreme Court, the senior advocates, and the other members of the bar. First of all, I wish to express my sincere gratitude to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for gracing this occasion despite his demanding schedule. His presence reaffirms the shared responsibility of the legislature, the executive, and the judiciary in advancing the cause of legal aid and access to justice for all. I warmly congratulate the dedicated team of NALSA, led by my esteemed brother and successor, Justice Suryakant, for putting together this national conference on strengthening legal aid delivery mechanisms. The sub-themes of this conference, including on LADCs, capacity building of panel lawyers and paralegal volunteers, strengthening permanent lok adalats, and financial management of legal services institutions, are both reflective and forward-looking. These sub-themes urge us to assess our progress and envision the path ahead, building stronger institutions, skilled personnel, and sustainable systems for justice delivery. Today, as I do every day on the Legal Services Day, I find myself reflecting on what Mahatma Gandhi described as his moral compass, his talisman. He said that whenever we are in doubt, we must recall the face of the poorest and the weakest person we have seen, and ask ourselves if the step we contemplate will be of any use to them. To me, this idea finds its truest expression in the movement for legal aid and the work of our legal service institutions. This movement is in many ways Gandhiji's talisman in action. It reminds us that justice is not a privilege of the few, but a right of every citizen, and that our role as judges, lawyers, and officers of the court is to ensure that the light of the justice reaches even the last person standing at the margins of the society. But have you ever paused to think, while we often take pride in the many cases we have helped resolve, what does it really mean to those who receive free legal aid? One incident has permanently imbibed in my mind. When I was executive chairman of NALSA, a couple of months ago, I, along with
my colleagues had visited a relief camp in Chura Chandrapur in the state of Manipur to distribute relief material. An elderly woman came forward and met me with folded hands and tears in her eyes and said, "Bane raho bhaiya." To me, that moment was a reminder that the true reward of the legal service movement does not lie in statistics or annual reports. It lies in the quiet gratitude and renewed faith of citizens who once felt invisible. In other words, the real measure of our success is not in the numbers, but in the trust of the common person, in the belief that someone, somewhere, is willing to stand by them. And that is why our work must always be guided by the spirit that we are changing lives. Even your presence for a single day, your visit to a village or a jail, your conversation with a person in distress can be life-changing for someone who has never had anyone come for them before. I want to take this opportunity to acknowledge the soldiers of the legal aid movement, our paralegal volunteers and panel lawyers. Without their tireless efforts, our vision of justice for all would never truly reach the ground. They are the bridge between the institution and the individuals, between the promise of the Constitution and the realities of everyday life. It is through their compassion, dedication, and persistence that our initiatives find life in the meaning at the grassroots. At the same time, we must keep envisioning legal aid not a reactive system, but as a living movement. We must not wait for distress to knock on our doors. Instead, we must continuously reflect on how society is changing on the new challenges, the new forms of exclusion, and the emerging needs of the people we serve. The strength of a just society lies in our ability to foresee where injustice may arise and to reach there before it does. As India celebrates the 75th year of its constitution, the legal aid movement must keep carrying forward the vision embedded in the preamble, the assurance of justice, social, economic, and political. The Constitution's promise will be truly fulfilled only when every person, regardless of caste, gender, language, or circumstances, feels that the system of justice belongs to him. I am confident that this national conference will serve not only as a platform for discussions, but also as a call to action, to innovate, to collaborate, and to reaffirm our faith in the power of law to transform lives. Let us remember that every act of legal aid, however small it may appear, is an act of nation building. As Dr. Baba Ambedkar once said, and I quote, "Ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is a battle for the reclamation of the human personality." These words also echo through the work of legal aid movement, which strives each day to return voice and dignity to those long unheard. Thank you very much. Thank you, Lordship, for your inspiring words. The journey of growth and excellence of NALSA has truly been possible because of the dedicated efforts of all present here and everyone else who is not around now but has contributed hugely along the way. Honorable Chief Guest, may we now play a video capturing the milestones and dedication that define the journey of NALSA during the past decade. न्याय हर नागरिक का मूल अधिकार है। इसी अधिकार को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की स्थापना की गई। नालसा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, बच्चों, दिव्यांगों, बंदियों और अन्य जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी
और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पिछले एक दशक में नालसा ने अपने काम का विस्तार किया है और विभिन्न योजनाओं जैसे स्प्रूहा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट स्कीम और वीर परिवार सहायता योजना के जरिए न्याय को हर व्यक्ति तक सरल और सुलभ बनाने का प्रयास किया है। आज नालसा का नेटवर्क पूरे भारत में फैला है। 37 राज्य प्राधिकरण, 707 जिला प्राधिकरण और 2440 तालुक समितियां जो हर कोने तक न्याय पहुंचाने में सक्रिय हैं। बदलते वक्त के साथ नालसा ने अपने प्रयासों में नवाचार और डिजिटलीकरण को अपनाया है। लीगल सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम और डेली कॉज लिस्ट जनरेशन जैसे प्रयास इसका प्रमाण है। महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, वृद्ध, दिव्य और स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से देश भर में अब तक 13,11,000 से अधिक मामले सुलझाए जा चुके हैं। 2,354 करोड़ रुपए से अधिक का विक्टिम कंपनसेशन। जुलाई 2025 तक मध्यस्थता के माध्यम से 8,61,000 मामले आपसी समझौते से निपटाए गए हैं। जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने 1,57,000 से अधिक कैदियों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की। यूटीआरसी की सतत बैठकों और निगरानी से न्याय प्रक्रिया और अधिक सशक्त हुई है। अप्रैल से जून 2024 की तुलना में अप्रैल से जून 2025 की अवधि में यूटीआरसी की अनुशंसा पर रिहा किए गए कैदियों का प्रतिशत 47 से बढ़कर 55 हुआ। लगभग 1.6 करोड़ नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये नालसा के विश्वास और समर्पण की कहानी है। नालसा का सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह सफर अभी और लंबा है। हमारा लक्ष्य है कि न्याय हर नागरिक तक पहुंचे और हम इस मार्ग पर लगातार और समर्पित प्रयास करते रहें। नालसा की एक ऐसी ही समर्पित पहल है कम्युनिटी मीडिएशन, जो न्याय और सामुदायिक समाधान को आम लोगों तक पहुंचाएगी, जहां संवाद और सहयोग के जरिए विवादों का प्रारंभिक स्तर पर समाधान होगा। हम अपने माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अनुरोध करते हैं कि वे कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल का लॉन्च कर इस पहल का शुभारंभ करें। सामुदायिक मध्यस्थता, न्याय तक पहुंच का जन आंदोलन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता योजना न्याय को समुदाय तक पहुंचाने की एक अनूठी शुरुआत है। इस पहल का उद्देश्य विवादों को न्यायालय पहुंचने से पहले ही सुलझाना, समाज में शांति, संवाद और आपसी विश्वास को पुनः स्थापित करना है। नालसा का ये प्रयास केवल विवाद निवारण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि न्याय की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का एक जन आंदोलन है। समझौते से समाधान, समुदाय के संग न्याय की ओर। नालसा अपने इस मिशन के माध्यम से पुनः दोहराता है, न्याय सभी के लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस लॉन्च के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। इस पहल के माध्यम से नालसा न्याय की पहुंच को हर व्यक्ति तक सुनिश्चित करते हुए अपने अटल संकल्प को पुनः दोहराता है, संवाद से समाधान, न्याय सभी के लिए। May I request Honorable Mr. Justice Bhushan Ram Krishna Gavai, Chief Justice of India and Patron-in-Chief of National Legal Services Authority, to present a small token of love and regard to our worthy Chief Guest, Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India. The Dokra Bull, which can be seen on my right, is a handmade artifact crafted by the tribal artisans of Bastar in the state of Madhya Pradesh.
It symbolizes strength, resilience, devotion, prosperity, and success. संपूर्ण भारत ही नहीं, अपितु विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित राजनेता के रूप में सुविख्यात परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति ने इस समारोह को ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय बना दिया है। अपनी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता एवं विनम्रता से भारतीय जनमानस में अटूट आस्था तथा नवीन ऊर्जा का संचार करने वाले अपने परम आदरणीय मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हम जिस उत्साह एवं स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं, वे अपने आप में आध्यात्मिक आनंद से कम नहीं है। प्रत्येक आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का मूल मंत्र प्रदान करने वाले इस कर्मयोगी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व ने हमारे समक्ष संभावनाओं के नए क्षितिज उजागर किए हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकालना आपकी करुणा तथा न्यायप्रियता का उज्जवल पक्ष है। हृदय की अतल गहराइयों से अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए हम विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपने उद्बोधन द्वारा हमें अनुग्रहित करें। सीजीआई श्री बी.आर. गवाई जी, जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस विक्रमनाथ जी, केंद्र में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, सुप्रीम कोर्ट के अन्य माननीय न्यायाधीशगण, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशगण, देवी और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना बहुत विशेष है। लीगल एंड डिलीवरी मैकेनिज्म की मजबूती और लीगल सर्विसेज डे से जुड़ा ये कार्यक्रम हमारी न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देगा। मैं 20वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया कि आज सुबह से आप लोग इसी काम में लगे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं यहां उपस्थित डिग्नेटरीज, न्यायपालिका के सदस्यों और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब न्याय सबके लिए एक्सेसिबल होता है, टाइमली होता है, जब न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल एड इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि न्याय सबके लिए एक्सेसिबल हो। नेशनल लेवल से लेकर तालुका स्तर तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, न्यायपालिका और सामान्य मानवी के बीच सेतु का काम करती है। मुझे संतोष है कि आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में
लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया है। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। 1,500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानून रद्द किए गए हैं। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों को अब भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है। और साथियों, जैसा मैंने पहले भी कहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और आगे हम इस दिशा में और तेजी से जाएंगे। साथियों, इस साल नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 दशकों में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जो लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अक्सर उनके पास न रिसोर्सेज होते हैं, न रिप्रेजेंटेशन होता है और कभी तो उम्मीद भी नहीं होती। उन्हें उम्मीद और सहायता देना ही सर्विस शब्द का सच्चा अर्थ है और नालसा के नाम में भी ये मौजूद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका हर सदस्य प्रेजेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम जारी रखेगा। साथियों, आज हम नालसा का कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। इससे हम भारतीय परंपरा की उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक मीडिएशन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मीडिएशन एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने, हार्मनी बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक डिसरप्टिव शक्ति है, लेकिन अगर उसमें प्रो पीपल फोकस हो तो वही टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिकरण की शक्ति बन जाती है। हमने देखा है कि कैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। आज छोटे से छोटे वेंडर्स भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं। गांवों को
लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा गया है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही ग्रामीण इलाकों में एक साथ लगभग 1 लाख मोबाइल टावर शुरू हुए हैं। यानी टेक्नोलॉजी आज इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बन रही है। जस्टिस डिलीवरी में ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट भी इसका एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जुडिशियल प्रोसेस को आधुनिक और मानवीय बना सकता है। ई फाइलिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक समन सर्विस तक, वर्चुअल हियरिंग से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस तक, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। इससे न्याय मिलने का रास्ता और आसान हुआ है। आप सभी परिचित हैं, इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के बजट को बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है। ये इस प्रोजेक्ट के प्रति सरकार के स्ट्रांग कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, हम सभी ये भी जानते हैं कि लीगल अवेयरनेस का क्या महत्व होता है। एक गरीब व्यक्ति तब तक न्याय नहीं पा सकता जब तक उसे अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, वह कानून को न समझे और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी से डर महसूस करता रहे। इसलिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना यह हमारी प्राथमिकता है। आप सभी और हमारी अदालतें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे युवा, खासकर लॉ स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकते हैं। अगर युवा लॉ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे गरीबों और गांव में रहने वाले लोगों से जुड़े, उन्हें उनके कानूनी अधिकार और लीगल प्रोसेस समझाएं, तो इससे उन्हें समाज की पल्स को सीधे महसूस करने का अवसर मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य मजबूत ग्रासरूट नेटवर्क के साथ काम करने की हम लीगल नॉलेज को हर दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, लीगल एड से जुड़ा एक और पहलू है जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं। न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ आए। इसका ध्यान जब कानून को ड्राफ्ट किया जाता है तब रखना बहुत जरूरी है। जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं तो इससे बेटर कंप्लायंस होता है और मुकदमेबाजी कम होती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 80,000 से अधिक जजमेंट्स को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है यह प्रयास आगे हाई कोर्ट्स और जिला स्तर पर भी जारी रहेगा। साथियों, जब हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो लीगल प्रोफेशन, जुडिशियल सर्विसेज और इससे जुड़े सभी लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि वे यह कल्पना करें कि जब हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे तो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा होगा। उस दिशा में
हमें मिलकर आगे बढ़ना है। मैं नालसा पूरी लीगल फ्रेटर्निटी और जस्टिस डिलीवरी से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके बीच आने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार। May I now invite Honorable Mr. Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India and Chairman, Supreme Court Legal Services Committee to deliver the vote of thanks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable the Chief Justice of India and Patron-in-Chief NALSA, Justice Bhushan Ram Krishnan Gavai, Honorable Mr. Justice Suryakant, Chief Justice of India Designate and Executive Chairman of NALSA, my esteemed colleagues, Honorable Minister of State for Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Chief Justices and Honorable Judges of different High Courts across the country, Shri Tushar Mehta, Learned Solicitor General, members of the judiciary of all the states across the country, learned senior advocates, learned members of the bar, representatives of national and state legal services authorities, distinguished guests, ladies and gentlemen. A very good evening to one and all. It is my proud privilege on behalf of the Supreme Court Legal Services Committee, the National Legal Services Authority, and on behalf of all present here to deliver the vote of thanks. At the outset, we are deeply honored by the gracious presence of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Sir, your words have given renewed direction and energy to our collective endeavor to make access to justice efficient, inclusive, and technology-driven. Your visionary leadership and unwavering commitment to good governance continues to guide our nation towards institutional progress and innovation. We are extremely grateful, sir. We are also immensely thankful to the Honorable Chief Justice of India and Patron-in-Chief NALSA, Justice B.R. Gavai, for his visionary leadership and constant encouragement to strengthen the legal aid movement in the country. Our heartfelt thanks to Honorable Justice Suryakant, Executive Chairman of NALSA, for his tireless efforts and dynamic stewardship of his legal services institutions. We also extend our gratitude to Shri Arjun Ram Meghwal, the Honorable Minister of State for Law and Justice, for his valuable remarks and continuing support to NALSA's initiatives. I would like to share the timeless words of Helen Keller, a renowned American author and disability rights activist. Alone we can do so little, together we can do so much. I would like to acknowledge the dedication of the officers and staff of NALSA, the Supreme Court Legal Services Committee, the organizing team, and all the participants and partners who worked diligently to make this event a success. The short film we witnessed today stands as a testament to their commitment and the transformative work being done at the grassroots level. As we commemorate Legal Services Day, may we renew our commitment to the constitutional promise of equal justice for all. Thank you. Jai Hind. Thank you, Lordship, for your kind words. The inauguration session of the two-day national conference hereby concludes. Thank you. Everybody in the audience is requested to remain seated and not rise till the Honorable Chief Guest departs.